हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं लोकिता टिंडवानी जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2018 में रैंक 2125 हासिल की है एंड शी इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सरसाइज इंस्पेक्टर या जिसे जीएसटी इंस्पेक्टर अभी कहते हैं। She has also cleared SSC CGL 2017 एग्जामिनेशन और उस रिजल्ट के बेसिस पे शी इज वर्किंग एज टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट बडोदरा। लोकिता, you were already working through SSC CGL in income tax department. फिर 2018 देने का क्या मकसद था? एक्चुअली 2017 मेरा फर्स्ट रियल अटेम्प्ट था एंड जब तक उसके फाइनल रिजल्ट्स वर आउट 2018 का एग्जाम ऑलरेडी इट हैड स्टार्टेड। सो 2017 जब तक जॉइनिंग आई तब तक आई वाज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 2018। द एंटायर प्रोसेस वाज ऑलमोस्ट एंडेड until I joined in 2017 and the final joining जो हमारी हुई that was on 9th October last year. So those attempts actually overlapped with each other. क्या मोटिवेशन था एसएससी सीजीएल के लिए? SSC CGL जो एग्जाम है it's basically mainly for the group B and group C posts and जो current scenario है these are the almost the cream posts जो हैं apart from UPSC and whenever you aim for UPSC you have to have a plan B, right? And SSC provides the perfect platform कि जहाँ पे you can actually aim for higher studies or UPSC or whatever you want to do, but still have a very good job in your hand. So मेरा basic motive was to serve as part of the government, but also to have a respectable job while doing it. टू सर्व एंड टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका बहुत Yeah. बेसिक मोटिव था बिहाइंड एसएससी Hmm. सीजीएल के एग्जामिनेशन को क्रैक करना। लोकिता, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं बेसिकली रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ। आई डिड माई स्कूलिंग राइट देयर फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट। उसके बाद से आई ग्रेजुएटेड इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम SGSITS इंदौर in electrical branch. Post then मेरे पास I had offers from private companies, from 4 actually, but again my motive was to be a government servant, so I forfeited them and for I did all my I put in all my efforts into preparing for the CGL examination. लोकिता, जैसे आपने अभी बताया कि यू आर एन इंजीनियर, आपके पास जॉब ऑफर्स थे, बट व्हाट वाज इन योर Yeah. माइंड? वी वुड लाइक टू नो अबाउट द माइंडसेट कि किस तरीके से आपने उन जॉब्स को छोड़ा एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सोलफुली फॉर एसएससी सीजीएल। I think it was a very risky thing to do. I mean, the offers were from good companies, and when they are from good companies, it's your family pressure, your own colleagues doing better than you. But then I think it's all part of what you think you should be. I mean, I did not see myself working in a private company. Not that those are bad or anything, but I just did not see myself working as someone someone like doing a data analyst job or something. I wanted to be a government servant. I think that was my main motive, and I think I had my share of hurdles because the as you know that the 2017 exam was one of the worst SSC exams ever. It had all the hurdles that could possibly come in between, like there were cases, the exam was almost cancelled and it took almost three and a half years to get through it. So those were dark times for all of us, selected or not. But I think in your head, if you decide that okay, this is what I want to do, and if your family, if you're lucky enough, your family supports you, I think you get through this. कितने भी हर्डल्स आ जाएं, बट अगर आप क्लियर हैं अपने एम में, जैसे लोकिता ने कहा, तो यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू दी व्हाटएवर टारगेट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। Yes, those were like Divyanshi, I'll tell you really frankly, those were really dark times. And I mean, you ask me or someone else from this background, there were nights that we could not sleep. We have cried ourselves to bed. And because there was a point in this journey where there was no sight of results from the 2017 exam, and the 2018 exam was in a limbo
nothing was actually happening. And because we were so deep into the preparation part, we could not shift our focus to any other examination. But then again, this was something that I repeatedly heard from multiple sources who were trying to motivate me. Like, jitni one sec, jitni kali raat hai, utni sunehri subah hogi. I think I'm sounding a little cheesy, but it really helped me. But that is true in your case. Thankfully, luckily, yeah. लोकिता, जैसे आपने बताया कि जैसे हमने और भी देखा है कि एसएससी एग्जामिनेशन आर क्वाइट रिगरस, 4 स्टेजेस में होते हैं। एंड अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 2017 में शुरू हुआ, 2019 में रिजल्ट आया, 2018 का एग्जामिनेशन का 2021 में रिजल्ट आया। तो इतने बड़े स्पैन होते हैं पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के, आपने भी बताया था वो डार्क टाइम्स। तो हाउ टू कीप वन मोटिवेटेड, फोकस, क्योंकि काफ़ी सारा प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से भी, सोसाइटल प्रेशर रहता है टू गेट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। हाउ टू सस्टेन योर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन? बचपन से मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है कि यू हैव टू बी रेजिलिएंट, मतलब कुछ भी हो आपको वो चीज छोड़नी नहीं है, पढ़ाई हो चाहे स्पोर्ट्स हो। तो फर्स्टली जो किसी भी इंसान को ट्राइंग टू एस द एग्जामिनेशन, उन्हें अपने अंदर एक सेट टारगेट करना चाहिए, लाइक व्हाटएवर हैपेंस, कम व्हाट मे, कितना भी टाइम लगे, मुझे ये करना है, मतलब मुझे ये करना है। सेकेंडली, आपका आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स से भी एक स्ट्रेंथ ढूंढनी होती है। सो बी इट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, and even whatever religion or spirituality, whatever you find yourself motivated or strong from, आपको वहां से स्ट्रेंथ लेनी पड़ती है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आपको जो भी आप डिस्ट्रैक्शंस हैं, like whatever, if you're in a relationship, if you're into sports, if you're, मतलब multiple distractions are there, and I think the foremost is social media. So you should have your मतलब एक डिस्टेंस बना के रखो उनसे। डोंट एक निग्लेक्ट कर दो कि बिल्कुल मैं अब फोन नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगी, बट हैव अ डिस्टेंस, एक सेट ऑफ फिल्टर होना चाहिए कि ओके, दिस इज व्हाट आई विल लेट माई सेल्फ गेट अफेक्टेड फ्रॉम। तो मल्टीपल चीजों से स्ट्रेंथ ड्रॉ करनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं यही कहूंगी कि आपके अंदर स्ट्रेंथ ढूंढनी पड़ती है। इट्स समथिंग यू हैव टू डू, देयर इज नो ऑप्शन उसके अलावा। लोकिता, जैसे आपने बताया कि आपको हमेशा से पता था कि प्राइवेट जॉब्स आरंट मेंट फॉर यू और हमेशा ही गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना था, तो आई एम श्योर आपने ये कॉलेज के टाइम ही सोच लिया था, प्रिपरेशन का एक अप्रोच बना लिया होगा। तो ये कई सारे आप कॉलेज स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन बन सकती हैं कि आप जब कॉलेज में हैं तो किस तरीके से माइंडसेट बना के प्रिपरेशन को अप्रोच करना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉलेज में मेरा नहीं था माइंडसेट। कॉलेज में मैं आई वाज गोइंग फॉर द IIM, आई वाज गोइंग फॉर MBAs एक्चुअली। सो उस टाइम मैंने MBA की कोचिंग कर रखी थी। तो एंड आई ऑलमोस्ट जॉइंड इन IIM, बट देन अगेन उस ड्यूरेशन में, द ड्यूरेशन व्हेन आई जॉइंड द कोचिंग इन माय कॉलेज टाइम, वो कोचिंग भी मुझे काफी हेल्प आई for my preparation for CGL because the syllabus is somewhat related. तो कॉलेज के बाद when I actually took stock कि मुझे क्या करना है, I think कॉलेज के फाइनल ईयर तक I was okay, I want to join the government sector, and post that I started my preparation, the back preparation that I already had, that helped too. किस तरीके से अप्रोच करना है एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए? फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूंगी, रैंडम चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, बिकॉज करेंटली जो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, स्पेशली ऑन द वेब, आई थिंक कोई बंदा बैठ रहा है प्रेपरेशन करने के लिए, सो ही इज bombarded by so many faculties, so many courses, so much of information that is really not needed. तो आपको blinders लगा के you have to पहले आपको सर्च करना है कि which are actually faculties जो आपको हेल्प कर सकते हैं. Like when I started my preparation, I think that was the time where the online coaching was in its nascent stage, early 2017. So I remember I was surfing the web, and if I'll talk about the general studies part first.
So for GS, I think I was surfing the web one day. मैंने YouTube की साइट खोली हुई थी and I still remember बहुत सारे videos available थे and मैं एक series of videos I was continuously watching. But वो एक आपको समझ आता है if it's going to help me in the exam or it's uh, just plain they are just trying to mislead you or something. तो I stumbled upon Study IQ and मैंने वहां से उन गौरव सर के वीडियोस देखने लगी and I think from that point onwards I understood the relevance of those videos and I started following them continuously and उसके बाद मैंने जो भी एग्जाम अप्रोच की they really helped me, they really did and that was all about the general studies as far as CGL is concerned, the current affairs part. Other than that, there are multiple books on static GK that you can refer. So it's completely at your any person's discretion. Coming to maths, I think there are multiple coaching institutes that teach online. So you can follow them. But then again, you should refer to the previous year's questions. But I would not say just rely on the previous year's questions because the 2017 paper, 2016 and 2017 paper were like North and South. And then 2018 paper was again very different. But previous year question paper karna is very important. Thirdly, coming to English, English is pretty easy. इसमें कुछ problem नहीं होता है. You can refer to previous year's question papers. And earlier English थोड़ा tough आता था, but now it's pretty doable. And the fourth is reasoning. Again, previous year question papers or any books that are available that'll do. ये तो आपने स्टेज 1 के लिए बहुत ही अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपनी स्ट्रैटेजी बताई। Yeah. अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे एंड सेल्फ एनालिसिस कैसे करते थे। वी आर टॉकिंग फॉर द प्रीलिम्स। Okay. Prelims, I would say mock tests. Mock tests, I think more or less वो आपको एक environment देते हैं. I would not say आप शुरुआत से ही mock test लगाओ because आप जब एग्जाम देने जा रहे हो it's not just how much आपने पढ़ा है, it's more about आप उस टाइम पे अपना temperament कैसे रखते हो. Because if you're going there कि मैंने सब पढ़ा है, now I'll ace the exam, I'll score 200 on 200. Now it goes beyond 200. But वो माइंडसेट से आप अगर जाओगे यू विल बी लाइक यू विल जस्ट फॉल, एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी. यू हैव टू गो विद द माइंडसेट कि आपको आपने कर लिया अपने साइड से, नाउ इट्स ओके हाउएवर दिस गोस. सो मॉक टेस्ट गिव यू द एनवायरनमेंट जहां से यू कैन गेट अ sense are you trying to ace the exam or are you just trying to score a perfect score, because there's nothing called perfect score. If you aim for that you'll end up falling on your face. Secondly, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का सही तरीका, I don't know सही तरीका कहेंगे उसे, but what I do is okay, this is a question in front of me और बस यही क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है. So you're just completely into that moment, into that question. That's what I did. Because the first time, I still remember the first time in 2016, I was attempting the paper and I had that mindset, okay, I've studied so much, मैंने इतना पढ़ लिया है, now I'll ace the exam. And I ended up with nothing. So, yeah. ये तो आपने बहुत ही बताया कि किस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, साथ ही साथ प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करनी है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं जो मेंस या टियर 2 होता है उसमें इंग्लिश और मैथ्स ही आती है, तो उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है? मेंस एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीजीएल का as far as it's concerned, because and mains may be specifically the maths part, and you'll notice a pattern कि UPSC में when you talk, I'm not drifting from the examination, I'm just stating that UPSC में you'll find more female participation क्योंकि वहाँ पे relatively maths कम आता है. And the key, I would say, the twist in SSC examination is जो maths होता है tier 2 का, that's the deciding factor. And it was at one point it was my Waterloo too, I would not lie. But then again उसके लिए भी you have to be thorough with the concepts. आपको concept आना चाहिए because
पेपर कैन बी टू वेज, या तो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस होता है या इट्स कैलकुलेटिव. बिकॉज 2016 तक अर्लियर यूज्ड टू डू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, बुक्स आते थे काफी मार्केट में, you do those questions and you're through with the examination. But 2017 में the paper took a 180 degree and the questions were conceptual. तो उस वजह से हुआ ये कि anybody who had strong concepts, they somehow sailed through the exam. And then 2018 we went with the mindset that okay, paper are conceptual, but then again the paper came calculative. So you have to be very thorough with the math concepts. And for them, I think multiple books are available, NCRTs are available, and more importantly, it's how much you have, how much efforts you've put into by following any one particular teacher. But that's again at your own discretion. लोकिता, मैथ्स और इंग्लिश की बात करें तो मैथ्स और इंग्लिश प्रीलिम्स में भी आता है, तो किस तरीके Yes. से इन दोनों तैयारी को पैरेलली रख सकते हैं और एक डिस्टिंक्टिव लाइन कैसे पता हो कि दिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज फॉर माय प्रीलिम्स एंड आफ्टर दिस इज फॉर माय मेंस? Like I said earlier, इसमें you have to follow the previous year's question. Maths and English जो prelims में आते हैं, they're relatively easy as compared to the mains. And वो 25 questions होते हैं, so आप you can easily sail through the sections. And वो I mean frankly they are little easier. What happens in mains is, like I said, maths conceptual base ज़्यादा आता है और it will be calculated. So you have to increase the number of attempts while maintaining your accuracy. तो उसके लिए आपको I think बहुत heavy चीजें नहीं पढ़नी होती है, but आप जो भी पढ़ रहे हैं, you have to make it on, मतलब it should be at your fingertips. Whatever you're studying, the concept, the speed, whatever you're doing, it should be at your fingertips. And उसके लिए multiple times आपको same चीजें करनी पड़ती है. मतलब you should be able to do those sums in your sleep, if I'm not exaggerating. And as far as English is concerned, multiple earlier, I think the idioms and the grammar, they're all repeated some way or the other. So English, again, I would say it's not that tough. You can easily sail through it. टीयर 1 और टीयर 2 की बात करें तो ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट टीयर 3 जो कि सब्जेक्टिव होता है, उसके लिए क्या स्पेशल तैयारी करनी है? I think tier 3 के लिए क्योंकि it's descriptive, तो आपको मल्टीपल जो भी ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, जैसे अगेन आई टोल्ड अबाउट प्रशांत सर्स वीडियोस, वो देखने चाहिए. सेकेंडली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए. थर्डली आपको उस ड्यूरेशन में जब टियर 3 आने अप्रोच करने का आने वाला होता है, सॉरी, बट उस टाइम यू शुड बी एबल टू write, so you should practice more and more the writing part of your journey, because उस time होता ये, because you're so used to doing it objectively, like you have to just do the MCQs, कि most of the time what happens is वहां पे जाके we freeze, we're not able to write because the topic is not as direct as okay, you have to write on Ujjwala Yojana. It's in CGL, I'm talking about CGL. Nowadays what happens is that you're given ki how much do you think Ujjwala Yojana has been successful in eradicating whatever the problem that was in the rural areas. So you have to have a certain sense of connectivity while writing. You should practice writing a lot. You should watch the news channels like RSTV or Doordarshan, because that's the amount of news that you really need while attempting tier 3. डिस्क्रिप्टिव की जैसे आपने बताया कि अब एक थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच आने लगा है, तो किस तरीके से वो अपनी हैबिट में इनकलकेट करना है और क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपने माइंड में प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन के लिए जाना है? टियर 3 बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टियर है, आई बी वेरी फ्रैंक. तो ऑल मतलब एक बंदा जो जा रहा है उसको इस माइंडसेट से जाना चाहिए कि ओके, आई हैव ऑल माय इंफॉर्मेशन रनिंग इन थ्रू माय हेड, लेकिन वहां पे मैं जाऊंगा तो आई हैव टू बी इन द मोमेंट अगेन. तो उसके लिए, उस चीज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो बैकग्राउंड चाहिए वो है, यू शुड वॉच दूरदर्शन, आपको RSTV देखना चाहिए, यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो आपके माइंड में, आपको उसे लिखना चाहिए. बिकॉज वहां पे जाके आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि ओके व्हाट इज दिस स्कीम,
ये स्कीम क्या है, इट वुड बी लाइक ये स्कीम से XYZ जो उसका टारगेट था, हाउ मच हैज इट रियली इम्पैक्टेड। तो वहां पे जाके काफी लोगों का यही प्रॉब्लम हो जाता है कि वो रिलेट नहीं कर पाते थे। तो एज लॉन्ग एज आप लिखना शुरू नहीं करोगे टॉपिक्स के बारे में, आप वहां पे जाके यू वोंट बी एबल टू राइट इट, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म। एंड इसके बारे में फ्रैंकली स्पीकिंग आई वुड से कि टियर 3 बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, द मार्किंग पार्ट ऑफ इट। तो इफ somebody is approaching CGL on a practical level, तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि आप टेयर 2 को काफी काफी सीरियसली लिया। टेयर 3 आप एक बार सम सम वे करके निकाल भी सकते हैं अगर आपका टेयर 2 इज बैलेंस्ड। क्योंकि टेयर 3 मेरे साथ ही हुआ है कि in 2017 I got really good marks, but 2018 my tier 3 went better, लेकिन मुझे कम मार्क्स मिले। So it's very unpredictable. So I think the right practical approach for the exam is you completely ace your tier 2. आई गेस ये बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन सबके लिए रहेगा। अगर टियर 3 काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है तो टियर 2 के लिए आप बहुत मेहनत करें, टू जस्ट टू मेक श्योर कि अगर थोड़ा सा कुछ दिक्कत भी होती है टियर 3 में, यू हैव योर टियर 2 टू बैलेंस इट। लोकिता, जैसे हमने टियर 1, टियर 2, टियर 3 तीनों की ही बात कर ली, टेस्ट सीरीज का रोल बहुत ज़रूरी है। टियर 2 के लिए किस तरीके से टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, और टियर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है और एनालिसिस करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, टेस्ट सीरीज आपको माहौल देते हैं, एग्जाम का माहौल देते हैं। बिकॉज XYZ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, किसी की भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आपको वो माहौल में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2 घंटे एक पेपर के, जो टेयर 2 की, आई टॉक स्पेसिफिकली क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2 घंटे आप उस माहौल में हो और आपको पता है ओके दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक इट और ब्रेक इट इन द लॉन्ग टर्म। तो वो माहौल में आई थिंक मेरे साथ ही हुआ है कि आई गॉट रियली एंग्शियस। और एंग्जाइटी में होता क्या है कि यू कैनॉट इवन सॉल्व द बेसिक क्वेश्चंस, दो दैट वाज अ केक वॉक आपके घर पे। तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना मेरे हिसाब से लेटर स्टेज, जब आपकी प्रेपरेशन हो चुकी होती है, एंड आप जब एक लेटर स्टेज, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 90% कर लिया, तब अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज, जो मोस्ट मेरे साथ वालों का प्रॉब्लम था कि वो टेस्ट सीरीज देते थे एंड देन दे डिड नॉट फॉलो अप विद द एनालिसिस ऑफ। जैसे फॉर इंस्टेंस दे हैव डन वन क्वेश्चन रॉन्ग, दे डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग देयर। तो अगर आप आप हफ्ते में एक टेस्ट भी दे, तो मेक श्योर कि आप उसकी एनालिसिस करें कि व्हाट्स योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्हाट्स योर वीक पॉइंट, एंड देन वर्क ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ इट। एंड टियर 3 की आई डोंट थिंक देयर इज एनी टेस्ट सीरीज दैट्स नीडेड। टियर 4 के लिए आई माइट सजेस्ट, बट टियर 3 के लिए आई डोंट थिंक एनी टेस्ट सीरीज इज रियली नीडेड। टियर 4 पे बातें हैं, और टियर 4 जो हमें पता है कई सारे पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं होता है। टियर 4 Yes. सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, बट उसके लिए किस तरीके से स्पेशल तैयारी है, और आपने जैसे बताया कि टियर 4 के लिए भी टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ सकती है। See, tier 4 again, luckily it's qualifying. But tier 4 में what happens is that I almost screwed up my typing because उसमें typing आता है. There's a CPT module. CPT module में PowerPoint and Excel का presentation आता है. एक sheet बनानी होती है basically online. उसमें I think typing की practice is the most important because the PPT and the Excel part can be done within a week, I think. But typing is that it's where it gets tricky. तो आपको आपका जो PCs में आपके वर्ड होता है, ओके, जस्ट स्टार्ट टाइपिंग। there's a पैरा, टेक पैरा, उसमें आप रैंडम चीजें टाइप करो इनिशियल स्टेज पे। आप टाइप करो, you reach a certain speed and then go attempt the test series that are available for CPT module. उसमें what happens is there's a nowadays, earlier it was paper, there was a paper that was given to you and you have to reproduce it on your screen. Now it's already on the screen, तो आपको वो passage देखना होता है screen पे and then you have to reproduce on the right side of the screen. तो उसके लिए what again is needed is practice, just the typing practice. And I would not say it's very difficult, but yes, typing should be taken a little seriously.
because I have had experiences where I almost screwed up my typing. I've had friends who lost out on a job क्योंकि उनकी typing बिगड़ गई, क्योंकि उसमें होता ये है कि again due to anxiety and all, you end up missing one or two lines, and that's where it all goes wrong. क्योंकि you might be getting an inspector post, but then you don't ace your typing and then you're out of the race. ऑल्दो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर को होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द डिजायर्ड पोस्ट एंड रैंक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. योगिता, आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए 2017 एंड 2018 के. सो हाउ हैव यू फाउंड स्टडी आईक्यू हेल्पफुल इन योर जर्नी? जैसे मैंने बताया दिव्यांशी, जब आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, तब ऑनलाइन टीचिंग वाज इट्स बहुत ही इनिशियल स्टेज पे था. तो मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का यही प्रॉब्लम होता था कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि आपको क्या पढ़ना है, बिकॉज एक बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा था थ्रू ऑनलाइन कोचिंग. बट देन लकीली मेरे केस में हुआ ये दैट आई स्टम्बल्ड अपॉन स्टडी आईक्यू, एंड देन उसमें मल्टीपल फैकल्टीज के मल्टीपल वीडियोस डले थे. तो आई स्टार्टेड वॉचिंग अ कपल ऑफ दोज ऑन अ डेली बेसिस. एंड फिर जब मैंने रैंडम एग्जाम्स अप्रोच किए, तो मुझे एक सॉर्ट ऑफ रेलेवेंस लगा कि ओके, ये वीडियोस का यूज मुझे एग्जामिनेशंस में आ रहा है. एंड जब ऐसा होने लगा मेरे साथ, तो आई कंटिन्यूड वॉचिंग दोज. आई थिंक जब मेरा फ्री टाइम भी होता था, व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तब भी मुझे इतना इंटरेस्ट आ चुका था उन वीडियोस में, बिकॉज उनका कोहेरेंस जो होता था वो, इट वाज नॉट कि आपको रैंडम चीजें पढ़ाई जा रही है. आपको, इफ यू आर नॉट एबल टू you make use of it in exam, I think you will make use of it in something else, like group discussion में आप use कर सकते हो. And they were so informative. So I think I followed, for general studies, I followed all those videos very rigorously. लुकिता, हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाए, और साथ साथ जैसे आपने बताया कि वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड यू शेपिंग योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो वी फील ग्रेटफुल फॉर दैट. Thank you so much for those. I think I should thank you. लोकिता, दोनों ही अटेम्प्ट 2017-18 आपने क्लियर किया है. क्या क्रिटिकल पॉइंट्स रहे थे? यू हैव secured amazing rank in both the attempts. I think I would not say critical points, but I think जो जो point पे आके आपको कुछ भी नहीं समझ आता है, जैसे it's all dark in front of you, because like I'll speak in my case, I'd already forfeited job offers, and वो आपके ऊपर और pressure build करता है, नहीं, I should have gone to those, I should not have forfeited them. तो I think उस point पे आके, वो पॉइंट मैं इसीलिए कहूंगी क्योंकि नॉर्मल डेज में तो यू आर स्टडिंग, यू वेक अप, यू स्टडी, यू ईट, यू डू सम स्टफ, देन यू स्टडी अगेन, so it's okay. But at the end of the day, there are days when you actually don't know why you're studying, because unfortunately the system is a little screwed. So in those times, I think you should hold on to something, be it music, be it your family, be it online sitcoms. I think anything that makes you through the night. उन critical points पे अगर इंसान छोड़ देता है, I'm not glamorizing it, I'm just saying what I went through. उस point पे आके अगर candidate छोड़ देता है, okay, अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो it all goes out for nothing. Then वो कुछ भी कर लो, you cannot be successful. उस point पे आके, I think you should have something to hold on to, and that's what gets you through your darkest days. I think that's what worked for me. Some tips and suggestions for the aspirants preparing for SSC CGL, और किस तरीके से फोकस बना के, स्पेशली इस टाइम में जो कोविड का एरा चल रहा है, काफ़ी अनसर्टेनिटी है, किस तरीके से अपने आप को फोकस रख के पूरी लगन से इस प्रिपरेशन को करनी है? अगेन मैं यही कहूंगी कि अभी द सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है. आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग और एनीथिंग, बट देन अगेन, अगर यही एग्जाम आपको एस करनी है, तो आप सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचो. डोंट थिंक कि अब कोविड है, डोंट थिंक कि अब इतना कंपटीशन है, सीट्स लिमिटेड है, डोंट थिंक अबाउट ऑल दोस फैक्टर्स. आप अगर एग्जाम में जा रहे हो, गो विद अ माइंडसेट कि आई एम रेडी फॉर एनीथिंग. क्योंकि जब व्हेन आई वेंट इनटू प्रिपरेशन, द प्रिपरेशन मोड,
I did not know actually how the examination works, thankfully. Otherwise, I would have taken a step back because it is a little scary. To just go with the mindset, okay, whatever comes in front of me, I'm going to be in it and I'm going to come out successful at the end of it. Don't look for the excuses why you cannot go into it. That's what I think. बहुत अच्छी और वैल्यूएबल पॉइंट लोकिता ने बोला कि डू नॉट लुक फॉर एक्सक्यूजेस, क्योंकि अगर आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं तो हजारों एक्सक्यूजेस होंगे, बट मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक मोटिवेशन बहुत है। Exactly. तो प्लीज आप पढ़िए और अपना बहुत ख्याल रखें। एंड थैंक यू सो मच लोकिता फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर जर्नी, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much. The pleasure is all mine. Thank you.